आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज दफा 370 की मनसूखी के हवाले से अदालत उज़्मा में समात जारी है। 2 अगस्त से शुरू होने वाली समात का आज तीसरा दिन है, जब मारूफ वकील कपिल सिब्बल दलाइल पेश कर रहे हैं। केस की समात 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे हैं। याद रहे कि 70 घंटों की समात के दौरान 18 वकला बारी बारी से दलाइल पेश करेंगे। केस की समात के पहले दिन जहां उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहीं आज रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। और आज जहां कपिल सिब्बल की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 1951 की स्पीच का भी जिक्र किया है, वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा है कि डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, उसका विजन जो था वो काफ़ी सही था। और इस हवाले से कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलाइल भी पेश किए, जिसके जवाब में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रिमार्क्स दिए। Government of India showed readiness to accept it. Legally, the instrument of accession had to be signed by the ruler of the state. This the Maharaja did. While accepting that accession, the Government of India said that she wished that as soon as law and order has been restored in Kashmir and our soil cleared of invader, the question of the state succession should be settled by reference of the people. Actuated by sincere desire to avoid bloodshed and further conflict, the Government of India approached the Security Council in 1948 with a plan against Pakistan. The request was simple. The contention of India was that Pakistan was responsible for the invasion of Kashmir and was continuing to help the raiders who had been employed as mercenaries. And it was further said that legally bound as India was to clear the Jammu and Kashmir state of raiders, might be constrained to pursue the invaders to their bases in Pakistan, which might lead to still bigger conflagration. India therefore wanted the Security Council to dispose of the case as quickly as possible in the interest of justice. That's how the question of plebiscite Muller's came before the Security Council. Then Muller's paragraph, this is the essential background which we must fully take into account. Now I shall indicate some of the considerations which should be kept in view when you, the honorable members of the August Assembly, shoulder the grave responsibility of giving our considered opinion on this issue of accession, which affects not only the present generation of our people, but generations yet to come. Let us now skip where he specifically speaks about the importance of the affiliation with India and accession to India, because he speaks in terms of, first he speaks about the Indian Constitution. That's correct. Second, it's very important from a historical perspective. Sheikh Abdullah refers to the land reforms which were taking place post the First Amendment and the other amendments which took place to the Constitution. He says Pakistan, on the other hand, is a feudal state. That's correct. And therefore, our interests would not be protected in a feudal Pakistan as compared to an India where land reforms were taking place. Then he refers to the fact that, India has, of course, the access to the seas and therefore a better, as an economic powerhouse. Correct. For us to carry on trade through the auspices of India. And this really continues until PDF page 107. I didn't want to refer to it because it would take too long. Two, it's the background, but we're dealing with a temporary division. That's why I didn't refer to it. But all that is very important. The reason is simple. Ultimately, what did J&K do? The people of J&K gave to themselves the constitution just as the people of India gave to ourselves this constitution. So central to all this is the will of the people.
And therefore, you will have to compare it to the. Very interestingly, see how Sheikh Abdullah puts it. He says the most powerful argument which can be advanced in her favor is that Pakistan is a Muslim state. Yes. And a big majority of our Under people being secular- Muslim, the state must succeed to Pakistan. But then he says, this claim of being a Muslim state is of course only a camouflage. It is a screen to dupe the common man so that he may not see clearly that Pakistan is a feudal state in which a clique is trying by these methods to maintain itself in power. Absolutely. Chip is right. The point I'm making, Malaz, ultimately, what's the essence in this matter that your lordships are hearing? The will of the people of a state where the executive act of the Union of India. सुप्रीम कोर्ट में आज दफ़ा 370 के मुतलिक समाअत से कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात की है, जहां वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही थे, जहां उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा से बात की है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जहां फारूक अब्दुल्ला साहब, सुनील लिम्पल साहब पहुंच गए हैं। सर, बहुत बड़ा दिन है, आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। जी जी सर, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है कि आज इतने सालों के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन उठाई है। उम्मीद करते हैं कि ये सुनेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जस्टिस देंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया दस्तूर साज असेंबली का उठाया गया, खासतौर से कहा गया कि उस असेंबली के बगैर ये इसको हटाया नहीं जा सकता था। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस वक्त कोई भी इस पे बात करना गलत होगा। इतना ही काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम इनका इंतजार करेंगे। सर, एक खबर मिली है कि अलायंस एक और नया बनने जा रहा है जो बिना कांग्रेस और बिना पीडीपी के होगा। ये एक ऐसा अलायंस होगा। कोई पता नहीं सर, एक और अहम खबर कोई जा पता रही है सर के बहुत फायदा हुआ है, तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर के। जनाब। हाँ सर, कुछ तरक्की आपको लग रही है कि हुई है 370 और 35 से हटने के बाद? कुछ नहीं कहूँगा भैया, आप खुद देख लीजिए। मेरे ज़बान से मत कुछ पूछिए। चलिए छोड़। दफ़ा 370 और 35 पर एक तरफ समाअत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एक नया अलायंस बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सुनील लिम्पल से बात की है। दिल्ली में हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुबह से लगातार हम आपको अलग अलग तरह की कवरेज दिखा रहे हैं। मैं ताबिश कमाल और मेरे सहयोगी साजिद लगातार हम जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से आपको पल पल की अपडेट सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे और उससे पहले उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ सुनील लिम्पल हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लिम्पल साहब, आप लोग पहुँच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग आ गए हैं, लेकिन मुझे ये भी खबर मिली है कि एक अलायंस आप लोगों की तरफ से कोई बनाया जा रहा है जिसमें महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, अपनी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये लोग नहीं, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं, तो एक अलग सा उन लोगों का अलायंस बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। ये खबर कितनी सही और सटीक है? देखिए, आपने अगर ये अपने सूत्रों से के हवाले से ये जानकारी पाई होगी तो सही होगी। अभी इसके बारे में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जंग है 370-35A की, जो हमने सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री के कार्यालय तक और वहाँ से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। पहले हमें ये यहाँ से इंसाफ तो मिल लेने दीजिए। ये प्रश्नों के जवाब आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। सवाल फिर समझिए। मैं कहलवा नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं आए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो नहीं आई हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम 370 और 35A की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदस्तूर खड़े हैं और उनका कोई पिटीशन नहीं है, कोई वकील नहीं है। इसी बात की ताबिश बड़ी हैरानगी हुई मुझे। मैं तो दिल्ली में मुल्क के लोगों को ये बताने के लिए आया था कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है मेरे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, इतनी बड़ी विरासत थी, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत। आज उसकी कितनी बेकदरी हुई है कि हमने ये जंग जो है वो सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक हमने गुहार लगाई। लेकिन आज हमें इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोले हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी की है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और हमें पूरा यकीन है कि ये इंसाफ सुप्रीम कोर्ट हमें ज़रूर देगा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का मसला है। और इसके साथ साथ ताबिश, जो मांगे हैं हमारी, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो भारत के साथ जिसका इल्हाक हुआ था। और आप देखिए कि पार्लियामेंट में भी एक रेजोल्यूशन तो ये पास हुआ कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, लेकिन उसको आज़ाद कराने के लिए आज तक कोई नहीं कदम उठाया। और मैं कहूँगा कि अफसोस इस बात का हुआ था आविश कि आज यहाँ पे आकर के हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर में दावे करते हैं
कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार वो बनाएंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे जिसमें कांग्रेस भी साथ है, अपनी पार्टी भी है, पीडीपी भी है और अपनी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी भी है। यही सवाल तो शुरू में कर रहा था कि इनके बिना जो अलायंस बनना है उस पर बताइए थोड़ा सा। पहले अफसोस इस बात का कीजिए कि जो वहां पे मुख्यमंत्री बनने के और सरकार बनाने के दावे करते हैं उनका एक वकील यहां पे आकर के बहुत अफसोस। इसीलिए तो उन लोगों को छोड़ करके आप लोग अलग अलायंस बना रहे हैं। अब मेरे इस सवाल के से ज्यादा कुछ और बहुत बेहतर सवाल है कि हम जम्मू कश्मीर को लेकर के सरकार ने जो हलफनामा दिया था, सरकार ये कह रही है कि सब कुछ बेहतर है, रोजगार मिले हैं, वहाँ पर कई आयाम हमने पैदा किए हैं, कई अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामे पर ज़्यादा तरजीह नहीं दी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो फिर अगर अच्छा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को क्यों रिजेक्ट किया? और यही बात तो हम देश के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर का इतिहास, डेमोग्राफी सब बदल दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, हमारी ज़मीनें तक नीलाम हो गई, हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम हो गए, कोई विकास नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। सिर्फ हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ज़मीनें, रेत, माइनिंग माफिया, मिनरल माफिया, लिक्वर माफिया, और कितना। और वो पहली जम्मू कश्मीर रियासत होगी जहां पे कहते हैं कि बिजली आपको तब देंगे अगर आप बिजली के किराए हमको दोगे। स्मार्ट मीटरिंग हो गई, शराब का माफिया हो गया, कितना कुछ हो गया। और इनायत है, मेहरबानी है, सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये देश के लोगों को यही तो सुनाने के लिए हम दिल्ली आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, और देखिए कांग्रेस भी उतनी ही गुनाहगार और जिम्मेवार है इसको लेकर के, क्योंकि 1947 के बाद कांग्रेस की ही सरकारें मैक्सिमम। यहाँ सवाल लूंगा, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, कितनी उम्मीद रखते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर देश को कहां से इंसाफ मिलेगा? लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और 35 से बहाल कराएगा। हकीकत के ऊपर हकीकत, देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या इंसाफ मिलता है, लेकिन हम तो यही इंसाफ मांगने आए हैं कि हमारी पहचान, आइडेंटिटी, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत मान रहे हैं आप लोग। बहुत मजबूत है, मुबारक है आप लोगों की। और हमारे पिटिशनर देखिए लाइन लगा करके वहाँ पे खड़े हैं, वकील हमारे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महबूबा जी का वकील नजर नहीं आ रहा, अल्ताफ बुखारी जी का जो कहते थे महंगे से महंगा वकील करेंगे। इसलिए तो आप लोग दिल्ली में उनके बिना अलायंस बना रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जी भी, आज तो कांग्रेस भी जो 370 को अपनी छुआछात की बीमारी समझती थी, आज तो वो भी 370 की खीर खाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि इसलिए कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि 370 और 35 से सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा, इसलिए सब हम बहती गंगा में हाथ धो लें। जी बिल्कुल, आपने ताफिश बिल्कुल सही कहा और आपका बिल्कुल ही ये सही अनुमान है, मैं कहता हूँ। शुक्रिया डिंपल साहब, बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक के बाद एक बड़ी खबर दिल्ली में आ रही है। एक ऐसा अलायंस तैयार किया जा रहा है जो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 और 35 की लड़ाई लड़ेगा। यानी कि एक ऐसा अलायंस, मैंने सुबह आपको खबर दी थी और मेरी खबर पूरी तरह से सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। इसी तरह की खबर मुझे मिली थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब के यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग की खबर मैंने आपको सुबह ही दे दी थी और वो खबर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सटीक है कि अलायंस और जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है जो बिना इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के होगा, जो धारा 370 या 35 के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची हैं। मैं ताबिश कमाल और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत, बने रहिए मेरे साथ पल पल की अपडेट। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, छोटा सा तिजारती वक्फा। खैर मकदम है नाजरीन, हम आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं जहां इस वक्त बहस जारी है। इस वक्त जो बहस है वो तहरीक आदम एतमाद पर बहस जारी है। गौरव गगोई की जानिब से जिन्होंने तहरीक जो है पेश की थी और इसमें वो इस वक्त बहस कर रहे हैं, उसके बाद ही कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी इस पर बहस करेंगे। अपोजिशन की तरफ से वो बहस शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल जिन्होंने तहरीक आदम एतमाद पेश की है वो है गौरव गगोई, जो इस वक्त बहस कर रहे हैं। आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले।
और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये तीन सवाल हैं सर, और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी तीन है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं। लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को, इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ।
पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है। आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के PHE मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023. 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers. ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है
1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बढ़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है। ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।